that all of us can watch the spectacle that we've been talking about. Opportunities, Keval, I'm so proud of you. Keval really sings well as well. At some point, maybe not today, at some point, we'll make sure that we take this platform and provide a platform for this as well. Can we please keep clapping for Keval and Deepak for doing something extraordinary every day? हमेशा काफी होता है. And these are the people who are real heroes of our society. It's not just anybody. One day we might want to bring a change, but they bring a change 365 days a year. Forever and ever. Can we please keep clapping for them? Thank you so much. Thank you so much, Nirmala ma'am. Of late, which has a social message as well. So what can we expect from the upcoming slate from ZEE5 after Banda? Thanks. I think fair point. We, like I said, we focus on customer, and customer likes good story. We bring them up. The slate is very big. In fact, on 19th there's a big slate launch event that you will see. I won't take away the thunder from that. But huge number of stories with some great creators and producers are coming your way. And Banda is just the start. So yeah, we are all looking forward to it. But I'm sure that Banda is not the star of the stage. So all said and done, we are all excited about the next game that comes. Yeah. My other question was for Mr. Vinod. Yeah. So my question to you is that as the producer, how did you ensure that the ethos, the essence of Banda comes out in a very thoughtful and creative manner? The film is already made. We have made sure that Super and me, and we had given this young boy, young man, the entire support what he needed to make this film. And I must tell about Manoj ji has instilled that confidence in him, because he was the guy he was the Banda who told us that he should be directing the film. And let me tell you guys, we've seen the film and we are very happy that whatever the vision and whatever the reason to make this film has been achieved. I think you guys will see the film and be on the same page. Thank you so much. बहुत अच्छा कमाल का ट्रेलर है. मेरी सुपर से मेरा सवाल ये है कि मनोज भाई बहुत कम लोगों के हाथ आते हैं. ऐसा क्या जादू है जो हर बार आप उनको पकड़ लेते हो? फैमिली मैन हुआ और कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट हुए, इस बार फिर पकड़ लिया आपने. फैमिली मैन तो मतलब राजन डिगी का प्रेम था जिसलिए मैं थोड़ा आया. बट आई थिंक नंबर एक आई थिंक खुशकिस्मती है कि आई गेट टू वर्क and we have been associated together for the last 15 years, personally and professionally. And honestly, there is nothing that you can't do. So it comes down to this कि जब भी कोई रोल आता है जो चैलेंजिंग है, उसमें से एक नाम आता है, वो मनोज बाजपेयी है. It appeals to him and I get to work with him. It's a pleasure every single time. मेरा दूसरा सवाल मेरे प्यारे दोस्त विनोद भानुशाली से है कि प्रोड्यूसर बनते ही पहला फिल्म किया जनहित में जारी, जो कि बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट था जिसको हाथ लगाने में लोग थोड़ा डरने की कोशिश करेंगे. दूसरी फिल्म आप ये बनाई, तीसरी अटल जी. तो क्या चाहते क्या हो आप सब, किस तरह के सब्जेक्ट का चुनाव आप कर रहे हो? क्या इस तरह की कंट्रोवर्सीज झेलने के लिए तैयार हो आप? आप लोग डरा रहे हो कंट्रोवर्सी. हम यहाँ कह रहे हैं कि हम सच के साथ हैं, आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी होगी. बट अगेन ये सारी जो भी फिल्में थी, आई थिंक फिल्म इन्फ्लुएंसर सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं. और अगर कोई चीज़ समाज की भलाई के लिए या लार्जर ऑडियंस को एक मैसेज पहुंचाने के लिए एंटरटेनिंग वे में बनानी हो, तो देन भानुशाली स्टूडियोज विल नॉट ट्राई इट. एंड उसके लिए शायद हमें जनित का भी सपोर्ट मिला था, जी का पूरी टीम का. एंड इसमें तो हमारे साथ क्या
Hi, Apurv. My question is to you. Here on your left, Rachita, you're from. लॉयर है, इसको आपने बनाया कैसे है? क्योंकि इसके बहुत किस्से होंगे, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करता है, लोकेशन की बात भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ तो बैकग्राउंड की स्टोरी जानना चाहता हूँ। आपके मन में वो स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं, जब हम फिल्म देखें तो आपकी बात को याद रखें। और वो ट्रेलर कैसा लगा संजय आपको? बहुत सुंदर ट्रेलर है और आपका काम भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब आप किसी बहुत ही चर्चित आदमी का, बहुत ही महान आदमी, जिसको पूरी दुनिया देखती रही है, उनके पास वीडियोस हैं, उनके फोटोज़ हैं, उनके हर दिनचर्या की कोई ना कोई रिकॉर्ड है, तब उनको करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज इस बात का होता है कि हम एक्सटर्नली उनको सबसे पहले अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, वो एक अलग तरीके का चैलेंज होता है। लेकिन जब आप एक कॉमन मैन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जिसने काम किया है, या उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, यहाँ पे मेरे जैसे कलाकार के लिए एक फ़ायदे की चीज़ होती है कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन जो है, मैं अपना नज़रिया उस कैरेक्टर के साथ डाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के साथ उठूँ, बैठूँ, उनको जानूँ और उनकी नकल करने की कोशिश करूँ बाहरी तौर पे। अंदर में वो इंसान कैसा है, क्या इस केस को जब वो उन्होंने लिया तब उनकी मनोस्थिति कैसी थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जब वो केस से डील कर रहे थे तब उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और कहाँ कहाँ पे वो वल्नरेबल हो रहे थे, कहाँ कहाँ पे वो कमज़ोर भी पड़ रहे थे, और कहाँ पे उनको किस जगह से उनको ताकत मिल रही थी। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो पूरे तरीके से इंसान लगे, ना कि वो शुरू से जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होती है तब तक वो हीरो लगे। मुझे हीरो दिखाने, हीरो जैसे चलता है, बैठता है, वो सब दिखाने में मुझे मेरी बिल्कुल उसमें कोशिश नहीं थी। इसीलिए मैंने सुपर्ण से और विनोद जी से और अपूर्व से बोला था कि भाई मैं ये लोग कह रहे थे मुझे कि आप मिलिए उनसे, पीसी साहब से। मैंने कहा यार मैं बताऊंगा कि मुझे कब मिलना है, पहले मुझे कैरेक्टर बनाने दें, क्योंकि उनका जो एसेंस है, जिसके कारण वो पीसी सोलंकी हैं, उसको मैं अपने नज़रिए में डालना चाहता था, एक कैरेक्टर खड़ा करना चाहता था, मैं उनकी नकल नहीं करना चाहता था। फिर मैं उनसे मिला, 2 दिन पहले मिला शूटिंग के, उनसे बातचीत हुई और कुछ एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, उसको मैंने ले लिया, बाकी मैंने नकल नहीं की। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात ये है कि जब मैं अपने आप को मैं फिल्म में देख रहा था तो बहुत बार मुझे लगा कि पीसी सोलंकी साहब को देख रहा हूँ मैं। तो वो जैसे एक फिल्म की थी मैंने अलीगढ़, वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर थे, लेकिन रिसर्च के नाम पे हमारे पास में सिर्फ एक आधे मिनट का एक इंटरव्यू था, उनका वीडियो था, लेकिन बाकी हम सब ने बनाया था। लेकिन जितने लोगों ने सीरस साहब को देखा था या उनसे बातचीत की थी या उनसे दोस्ती थी, उन सब लोगों का मानना था कि जो कैरेक्टराइजेशन किया था वो बहुत ही उनके करीब था। तो मेरे ख्याल से आदमी जो है वो अपने अंदर की चीज़ों से बनता है। बाहर से अगर सिर्फ देखने जाता तो मैं सिर्फ पीसी सोलंकी साहब की बाहर की चीज़ें नकल करता, फिर मैं भटक जाता अब उनको बनाने में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरा अगला सवाल शाहिद पटेल जी से है। सर मैं आपसे अच्छा, तो मैं लखनऊ थिएटर में एक बड़े महान अभिनेता रंगमंच को समर्पित हैं, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी। आप कुलश्रेष्ठ जी आप जा खड़े हो जाइए, इनके लिए ताली बजाइए, उन्होंने रोल किया। क्या कमाल का अभिनय किया है इन्होंने, मतलब दिल खुश हो गया। मैं इनको देखता था शूटिंग में, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, बैठ जाइए इस तरह। और दूसरे मेरे सीनियर, और मैं जिस समय थिएटर में काफ़ी एक्टिव था और वो इंडस्ट्री से कुछ पहले पास आउट हो चुके थे, और जिस आदमी ने मुझे बहुत इनकरेज किया जब मेरा इंडस्ट्री में नहीं एडमिशन होता था, तो एक आदमी था बाहर बैठा हुआ, किताबें पढ़ता रहता था, चाय पीता था, लेकिन मुझे बहुत इनकरेज करता था थिएटर में लगातार अच्छा काम करने के लिए। और इस फिल्म में भी उन्होंने धमाल किया है, वो है विपिन शर्मा जी। प्लीज
Thank you, Vijay. And our Deepak Nigrani, can you please stand up? Deepak is there, who's written the film. Thank you. Shivam Gupta is the casting director, and all of those people, all the talent, they will come on. They will come on stage later on. जी सर, आपका सवाल क्या था सर बताइए? यही सवाल था। बहुत सारे और भी मेरे बहुत सारे अर्जुन वगैरह हैं पीछे, हमारे एग्जीक्यूटिव और अर्जुन हमारे कैमरामैन देखिए वहाँ पे। मैं इन सबको ऊपर बुलाऊंगा बाद में जब बड़े लोग नीचे चले जाएंगे तब। अगला सवाल। कोई मैसेज के लिए सोशल। ये फिल्म एक सिंपल चीज से डील करती है, आस्था। जी, हम सब की आस्था होती है, हम सब किसी ना किसी को मानते हैं, एंड जब कोई इस आस्था के साथ खेले वो गलत हो। और हम कंट्रोवर्सी, एक वर्ड 3-4 बार सवालों में पूछा गया, हम कोई कंट्रोवर्सी को करना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट जहाँ तक हमारे लीड कैरेक्टर प्रीति सोलंकी का किरदार है, he uses his own faith, his own belief in Mahadev against someone who has done his faith wrong. So we are all people of faith, we are all people of belief, coming together to talk about one simple thing, that when millions of people put their trust in you, जहाँ आपको भगवान के साथ का दर्जा दें, तो उसका उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि गुरु होना एक बहुत बड़ी प्राप्ति होती है और जिम्मेदारी होती है। और हमारे देश में टचवुड गजब के गुरु रहे हैं। कुछ एक चंद लोग हैं जिनके चक्कर में कभी आश्रम ठेस पहुंची, बट अगेन बिकॉज ऑफ योर बिलीफ इन जुडिशियल सिस्टम और द सिस्टम दैट वर्क्स, योर फेथ इज रिस्टोर्ड। सो इट कम्स डाउन टू दैट। Thank you for. Can we please call upon the entire cast and crew? Vipin sir, Surya Mohan sir. देखिए ला जाओ, चलो तुम लोग भी आ जाओ। If everybody could be seated, thank you.